Question number 60 is question number 21. Question number 21. Vertices plus minus 3 comma 0, foci at plus minus 6 comma 0. So these two values are given. We will have to find the equation. Okay, first of all, we can see that vertices and foci are on the x coordinates. Y coordinate is 0. Y coordinate is 0. There also y coordinate is 0. Only x coordinate is going to change from in vertices from plus 3 to minus 3. In the foci also plus 6 to minus 6. So therefore, we will find the transverse axis along x axis. Transverse axis along x axis. So that we found. Now we will find the center. These two are very important. Center will be the midpoint of the vertices or midpoint of the foci. So we'll take the midpoint of the vertices. Plus 3 and minus 3. 3 minus 3 upon 0. 0 and 0. 0 upon 2, sorry. 0 plus 0 upon 2. That will be 0, 0. This is the center. Now we will find A and B. Vertices will be A from center to the vertex. A will be the distance from center to the vertex, one vertex. This is A. And distance between the two vertici will be 2A. So we will find the 2A from plus 3 to minus 3 will be 6. Or we will find from 0 to plus 3 or minus 3. So A will become 3. A square, this is plus minus 3. We will take plus coordinate, the distance will be plus A. Take the minus coordinate, that's only minus A. So plus minus 3. So A square will be equal to 9. Then the foci. Distance from center to the one focus. Distance from center to the one focus will be equal to C. Or the distance between the two foci will be 2C. So distance from center to the one focus will be equal to C. So C is equal to plus minus 6. So C square will be equal to 36. Now in the equation we use A square and B square, not C square. So first of all we find B square. Azim Bilal 63654. And who came? Talha Patni 64085. Okay. So C square is 36. Now we'll find B square. Use the formula A square plus B square is equal to C square. Put the values. A square is 9 and B square is unknown. C square is 36. So B square will become 36 minus 9 equal to 27. So C will become plus minus root 27. It may be written 3 root 3.
This is 27, 9 into 3. So square root of 9 will be 3 and under root 3. This is C. Sorry, this is B. We found B. B square. This is B square is 27. So B will be equal to plus minus root 27, 3 under root 3. Now equation, transverse axis along x-axis. So x minus the x coordinate of the center whole square upon a square 9 minus y coordinate of the center whole square upon b square. B square is 27 equal to 1. So this is the equation. Simplify this one. X square upon 9 minus y square upon 27 equal to 1. The standard equation. If you multiply by 27, the LCM of 9 and 27 will be 27. Multiply by 27, you will get the general equation. If you multiply by 27 this one, so 9 3s are, it will become 3x square. 27 multiplied by y square upon 27, 27 is cancelled, only y square. 1 is multiplied by 27, the answer is 27. This is the general equation. This is the general equation, this is the standard equation. In this way, we find the equation. Muhammad Salman Khan came 604097. Nine four. Three x square minus y square is equal to 27. Now we'll do question number 23. The asymptotes are given and the vertices are given. Question number 23, asymptotes, equation of the asymptotes and the vertices. Coordinates of the vertices are given. Question number 23. So anything do you want to ask in this question? No. सर डायग्राम इसमें भी गिवन नहीं है. नहीं, इन 24 तक डायग्राम नहीं है. अब बनाना चाहे तो बना ले, एग्जाम में हो सकता है वो डायग्राम पूछ ले, नहीं क्वेश्चन में से डायग्राम भी पूछा जा सकता है. इसकी बनवाना सर ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा और. एक्स एक्सिस से बनाना है भाई, इसमें कौन सा मुश्किल है. स्केच ही तो कर रहे हैं हम, कौन सा कोई ड्रॉ कर रहे हैं. एक्स एक्सिस से बनाना है हमने. सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है इसका, और ए जो है उसने 3 दिया है, बी सी जो है 6 दिया है, और बी हमने फाइंड आउट कर लिया. बी की जरूरत भी नहीं होती डायग्राम में अनलेस. ठीक है सर, ठीक है. हाँ, बी की जरूरत नहीं होती डायग्राम में अनलेस अगर हम एक्सिलरी रेक्टेंगल बनाए तो फिर बी की जरूरत पड़ती है. तो डायग्राम में बी की जरूरत नहीं होती. ए और सी चाहिए होता है. ए जो है वर्टेक्स पे होता है और सी क्या फोकस होता है. ए और सी हमें चाहिए होता है, तो वर्टिसेस और फोकस हमें चाहिए होता है, और बना लेते हैं हम इसको. बनाना चाहे तो बना ले. एक्स एक्सिस पे बन रही है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये हमने, ये सेंटर हो गया हमारा. वर्टेक्स है प्लस माइनस 3, यहाँ 3 पर आ गया, यहाँ माइनस 3 पर आ गया. ये भी हो गया, ये भी डैश हो गया. फोकस जो है 6 है, ये प्लस 6 हो गया, एफ है, और ये माइनस 6 हो गया, एफ डैश है. ये हो गया 3 माइनस 3 कॉमा 0, और ये हो गया 3 कॉमा 0.
फोकस क्या है, ये 6,0 हो गया, ये -6,0 हो गया। यहां से बना लें आप, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ फोकस है, ये बन गया, ये बन गया, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये डायग्राम बन गए भाई इसकी। इसमें कौन सा मुश्किल है। एसिम्पटोट्स बनाना चाहिए, रखें स्केल और ये ऐसे लगाएं कि इसको इससे टच करते हुए यहां से गुजर जाए, इसी तरह यहां से ये एसिम्पटोट्स बन गए। हाँ, अगर हमें वो भी दिया जाता ऑक्सिलरी रेक्टेंगल तो फिर बी की भी जरूरत पड़ती। बी इसमें कितना था, 36 - 9 27 √27, तो यहाँ पर कहीं बी बन जाता, यहाँ पर माइनस बी बन जाता, और फिर यहाँ से हम ये रेक्टेंगल बना लेते। अगर ऑक्सिलरी रेक्टेंगल कहा जाए तो फिर ऑक्सिलरी रेक्टेंगल आपने बनाना है, वरना रेक्टेंगल की जरूरत नहीं होती है अमूमन। ये 27 था, 0, √27, और ये 0, -√27, ये ऑक्सिलरी रेक्टेंगल बन गई। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। एसिम्पटोट्स गिवन है, ये अब नई चीज है, और वर्टिसेस गिवन है। इसमें भी इक्वेशन बनानी है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है ना, हमने इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 24 तक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 23, y is equal to plus minus 2x. Y is equal to plus minus 2x. This is the equation of the asymptotes. Okay. और क्या गिवन है हमें, vertices at plus minus 1, 0. These are the vertices. So ये दो चीजें हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स गिवन है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन है, both vertices. So there are two vertices, v 1, 0 and v dash -1, 0. First of all, we'll find the center. हमने ट्रांसवर्स एक्सिस आपने देख लिया कि दिस इज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, y coordinate is same, there is no change in the y coordinate, therefore vertices along x axis, x coordinate change हुआ 1 से -1 हो गया, so center 1 - 1 upon 2, 0 + 0 upon 2,
इट विल बिकम 0,0, ये हमारे पास सेंटर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट जो सेंटर का है वो इन दोनों के वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो सेंटर का 0 था, एक तरफ 1 चला गया और एक तरफ -1 चला गया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं। तो देयरफॉर ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, दो चीजें पता चल गई। अब हमने इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स, y is equal to plus minus 2x, take the square both the sides, it will become y square upon 4x square, y square upon 4x square, 4 से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब ये देखें, हम इसको भी उस तरफ ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 कर सकते हैं, और हम इसको भी इस तरफ ला सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी नेगेटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसको हमने बाई एक्स एक्सिस के ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, वाई स्क्वायर विल बी शिफ्टेड ओवर देयर, so that will become x square minus y square upon 4 equal to 0। और अगर ये y स्क्वायर y एक्सिस होता तो हम y स्क्वायर को पॉजिटिव लेते, x स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर देते और y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब वो लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स बनाते थे तो 1 की जगह 0 पुट कर देते थे। तो अब इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट से दोबारा इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो 0 को 1 से चेंज कर देंगे, पहले 1 को 0 रख देते थे इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बनाने के लिए। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट से उलट जा रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहे हैं, तो अब 0 को 1 सपोज कर लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला will be equal to x square minus y square upon 4 equal to 1. This is the standard equation of the hyperbola. और ये वर्टेक्स होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a होगा, so that is 1, 0 से 1 वर्टेक्स का 1 होगा, 0 से इसका माइनस प्लस, so a will be equal to plus minus 1, so a square will be equal to 1, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, a स्क्वायर जो है एक्स एक्सिस एक्स के नीचे आएगा, तो अगर y एक्सिस होता y के नीचे आता और ये पॉजिटिव हो जाता, तो इसके नीचे 1 है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इसको चाहे तो आप जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, इफ यू वांट टू यू मे चेंज इनटू द जनरल इक्वेशन, इफ यू मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम, 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर minus y square equal to 4. This is the general equation. This is the standard equation. This is standard equation. And this is general equation. So I said equation of the
एसिम्प्टोट्स है उसका स्क्वायर किया हमने, फिर उसको अपॉन में y जो नंबर है उनको अपॉन कर दें, और उसके बाद हमने चेंज करना है वो देखते हुए कि अगर x एक्सिस पे है तो x एक्सिस को पॉजिटिव लेना है, y स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर देना एक्स स्क्वायर की तरह। इस वक्त दोनों पॉजिटिव हैं, इस वक्त दोनों पॉजिटिव हैं, जिसको हम शिफ्ट करेंगे दैट विल बिकम नेगेटिव। तो दैट इज एक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ले लेंगे, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा ये, और इक्वल टू जीरो रह जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ जीरो बच जाएगा। और अब इसको आप रिवर्स कर देंगे, पहले वन को जीरो लिया करते थे, अब जीरो को वन कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए, और फिर इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द जनरल इक्वेशन। तो इस तरह अगर हमें इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स गिवन हो तो हम उससे जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। अंडरस्टूड? और ये एक्स एक्सिस पे बनाना चाहें तो इसका उसी तरह बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा, किस तरह बनेगा, किस तरह बनेगा, वर्टिसेस प्लस माइनस वन, एक तरफ वन पे आएगा एक तरफ माइनस वन पर आएगा वर्टिस। फोकस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, निकालना चाहे तो निकाल लें, ये वन है, ए स्क्वायर वन है, बी स्क्वायर फोर है, तो सी स्क्वायर फाइंड आउट कर ले तो फोकस निकल आएगा, सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और वो एक्स कोऑर्डिनेट में सेंटर के ऐड कर देंगे, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वर्टिस के कोऑर्डिनेट गिवन है, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, जी सर। नेक्स्ट वी विल डू, तो बाकी बस 24 तक इसी तरह है, बस ऐसे ही कर लें आप, यहाँ तक ही कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट्स। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लिमिट्स, सो वी आर डूइंग लिमिट्स। Now we are starting the calculus. We are starting the calculus. The first topic is limits. Limits, we'll put the values. We are doing exercise 2.2. We are doing exercise 2.2. Find the limits. So, question number 7. Question 7, exercise 2.2. This is from the Thomas calculus. Now we are starting the calculus. So we are using Thomas calculus. We are using Thomas calculus. Question exercise 2.2. Page
89. Question number 7. So I don't have the, I already told you, I don't have the mobile, I don't have the WhatsApp, etc. because the mobile has lost. So I'm not able to send you the picture of the exercise. So you may find from the LMS. वहां से डाउनलोड करें, क्या करें भाई, वो LMS को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वहां से एक्सरसाइज ले लें आप, वो अच्छी भी होगी, वाजे भी होगी। हमारी पिक्चर तो वैसे भी वाजे नहीं होती इतनी, तो वहां से वो आपको पिक्चर भी क्लियर मिलेगी, तो वहां से आप डाउनलोड किया करें। Question number 7, limit x tends to, find the limits in exercise 1 to 18 from question 1 to question number 18. Okay, question number 7, limit x tends to 2 x plus 3 upon x plus 3, x plus 3 upon x plus 6. Put the values. X is replaced by 2, so 2 plus 3 upon 2 plus 6. The answer will become 5 upon 8. So this is the answer. Put the values of x. 2 plus 3 upon 2 plus 8, it will become 5 upon 8. This is the limits of this question. Okay. Question number 13. Limit y tends to minus 3. Five minus y raised to power 4 over 3. Put the values. 5 minus minus 3. It will become 8. So first of all, we find the cube root of 8, 1 over 3 power. So 8 raised to power 1 over 3 और फिर power 4 ले लेंगे, because we know it is better to find the value of cube root of 8. Cube root of 8 क्या होगा, 2 हो जाएगा, it will become 2 raised to power 4, it will become 16. 2 2s are 4, 8, 16. 16 is the answer. Sixteen is the answer. Question number 15. Limit h tends to 0, 3 upon root 3h plus 1, and then plus 1 is, this is outside, this is out of the root. Put the values. 3 upon 3 into 0 plus 1 plus 1. 3 upon 0 plus 1 root plus 1.
3 upon 1 plus 1, 3 upon 2. This is the answer. Now the next question, question number 19 to 36. Find the limits. 19 to 36, find the limits. Doing question number 19. Question number 19. Limit x tends to 5. X minus 5 upon x square minus 25. Put the values. Five minus 5 upon 5 square minus 25. It will become 0 upon 25 minus 25. It will become 0 upon 0. This is meaningless. 0 upon 0 is the meaningless answer. Zero upon 0 is the meaningless answer. So in the denominator, as a numerator is okay, but as a denominator there should not be 0. In the denominator there should not be 0. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. ऊपर बेशक 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. So in the denominator there should not be 0. In the denominator there should not be 0. इस चीज का ख्याल रखना. अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर रॉन्ग है. If there is 0 in the denominator, it means answer is wrong. So how we will solve this one? We will use the factor method. We will find the factor of the numerator as well as denominator. न्यूमरेटर के फैक्टर नहीं बन रहे, ये एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं, इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं. सो विल डू इन दिस वे. विल मेक द फैक्टर्स. इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसके फैक्टर बन जाएंगे. दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 5 स्क्वायर. Until we are writing x, we have to write over there limit x tends to 0.